الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں نے سورہ کہف کی آیت تلاوت کی ہے کیونکہ آج کا ٹاپک وہ دجال کے تعلق سے ہے، تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ ہے سورہ کہف کا تلاوت کرنا۔ میں نے دجال کے تعلق سے کچھ 8 ٹاپک بنائے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے پارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ نمبر 1 دجال کیا ہے، نمبر 2 دجال کیسا ہوگا، نمبر 3 دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، نمبر 4 دجال کب اور کہاں آئے گا، نمبر 5 آ کر کے کیا کرے گا، کیسی تباہی مچائے گا، اس کے فتنے کیسے ہوں گے، نمبر 6 اس کے فالوورز کون ہوں گے، ماننے والے کون ہوں گے، نمبر 7 بچنے کا طریقہ کیا ہے، نمبر 8 خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو یہ 8 ٹاپک ہے، وہ میں دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ ہے مسیحی دجال کا ظاہر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت ہرگز اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ 10 آیات، وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 الدخان، دھوئیں کے نکلنا، نمبر 2 مسیحی دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 3 دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا، نمبر 4 طلوع الشمس فی المغرب، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 مشرق میں ایسا زلزلہ آئے گا پورا شہر دھس جائے گا، نمبر 8 مغرب میں ایسا زلزلہ آئے گا پورا شہر دھس جائے گا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ پورا شہر دھس جائے گا، نمبر 10 یمن کے شہر میں ایک آگ لگے گی جو پوری دنیا کو ہانک کر میدان حشر میں کھڑا کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ان میں سے 3 چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، تو کسی بھی شخص کو اس کا ایمان لانا، توبہ کرنا اسے کوئی بھی نفع نہ دے گا۔ اب اگر یہ 3 چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جو میں نے اوپر بتایا کہ دخان، دھوئیں کے نکلنا، مسیح دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا، یہ 3 چیزیں ظاہر ہو گئیں تو کوئی بھی شخص ایمان لائے، توبہ کرے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، تو وہ ان نشانیوں سے پہلے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ظاہر ہو گئی، ایک بھی نشانی واقع ہو گئی، تو باقی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ٹوٹے ہوئے مالا میں سے موتیوں کا گرنا، مطلب بیک ٹو بیک بہت کم وقت میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں جس سے ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے فتنے سے، اس کے تعلق سے ڈرایا، مگر جو باتیں میں آج تمہیں بتاؤں گا وہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ یاد رکھو، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جو واضح نشانیاں بتائی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور کسی نبی نے بتایا، ڈرایا سب نے ہے لیکن بتایا اتنی واضح نشانی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور بچنے کا طریقہ بتایا۔ تو اگر تمہارے سامنے آ جائے، اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے سامنے کبھی آ جائے تو یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی لیے اس کا جاننا، اس کا علم رکھنا ہر امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کل 30 دجال آئیں گے، 29 چھوٹے ہوں گے، ایک دجال اکبر ہوگا، ایک بڑا ہوگا جو قیامت کے نشانوں میں سے ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسلمہ بن کذاب، ابن سیاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد
बहाउल्लाह जो लोटस टेम्पल उन्हीं लोगों का है, बहाई मजहब का, इन्होंने भी नबूवत का दावा किया। तो कम बेश कुल मिला करके 29 छोटे दज्जाल आएंगे। अब बात करते हैं मसीह दज्जाल। मसीह के माने होता है घूमने के, चूंकि वो पूरी शहर पूरी दुनिया घूमेगा इसलिए उसको मसीह कहा जाता है। दज्जाल के लिटरल मीनिंग है, लफ्जी माना है धोखा देने के। दजल धोखा देना, दाजिल धोखा देने वाला, दज्जाल बहुत ज्यादा धोखा देने वाला, एक्सट्रीम लेवल का फितनेबाज, मक्कार। आप उसकी मक्कारी और फितनेबाज का ऐसे अंदाजा लगाइए, एक शख्स ईमान की हालत में घर से निकलेगा और उससे मिलेगा और शाम में काफिर होकर के वापस आएगा, जबकि बहुत सी निशानियां हैं कि उस पर काफारा लिखा होगा, एक आंख का काना होगा, लेकिन वो उसके बाद भी उसके फितने का शिकार हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल जो है वो सैटेलाइट है, दज्जाल मोबाइल फोन है, दज्जाल टीवी है, तो उसके ताल्लुक से मैं हदीस आपके सामने बयान करता हूं। आमिर बिन शर्जील अशजाई रदी अल्लाह अन्हु एक बार फातिमा बिनत कैस रदी अल्लाह अन्हा से कहा, आप मुझे वो हदीस सुनाओ जो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त सुनी, यानी डायरेक्ट सुनी और अभी तक किसी को नहीं बताया। तो फातिमा बिनत कैस रदी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि तुम मुझसे वो हदीस सुनना चाहते हो जो मैंने रास्त सुनी और अभी तक किसी को नहीं बताई, तो सुनो। एक बार ऐलान हुआ, मतलब अजान होती तो लोग मस्जिदों को जाते, तो उस दिन फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि उस दिन ऐलान हुआ तो मैं भी मस्जिद को गई, मैं औरतों की सफ में सबसे आगे थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की, फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और कहा बैठ जाओ। आप फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस दिन खुशनुमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बातें मैं तुम्हें दज्जाल के ताल्लुक से बताया करता था, आज उसकी तस्दीक के लिए एक शख्स आया है जिसका नाम तमीम अद्दारी है। तमीम अद्दारी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के बाजू में बैठे हुए थे। तमीम अद्दारी पहले क्रिश्चियन हुआ करते थे। उनका पूरा वाकया यूं है, तमीम अद्दारी कुछ अपने साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहे थे, समुद्री जहाज पर अचानक तूफान आता है और इनका जहाज ऐसे वीरान जगह पर, ऐसे जजीरे पे चला जाता है जहां कोई आबादी नहीं होती है। ये उस जजीरे पे उतरते हैं और जाते हैं। अचानक उनके सामने एक बदशक्ल आदमी आता है जिसके पूरे जिस्म पर बाल होता है, ना उसका आगे पता चलता ना उसका पीछे पता चलता है। तो उसे देख करके तमीम अद्दारी ने कहा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, तू कौन है? ना तेरा आगे पता चल रहा ना तेरा पीछा पता चल रहा है। तो उसने कहा, मेरा नाम जस्सासा है, मेरा आका तुम लोगों से मिलना चाहता है और वो मेरा आका फला महल में कैद है, वो तुम लोगों से मिलना चाहता है। तो तमीम अद्दारी पहले से डरे हुए थे, वो उसके पीछे हो लिए और जा करके देखा तो वहां लहीम शहीम जिस्म वाला आदमी, भारी भरकम जिस्म वाला आदमी, एक बेड़ियों से जकड़ा हुआ, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसे देख करके तमीम अद्दारी ने कहा, अब तू कौन है? तो उसने कहा, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? तो तमीम अद्दारी ने कहा, हम अरब हैं। तो उसने कहा, मुझे बैसान के बारे में बताओ। तो तमीम अद्दारी ने कहा, बैसान के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? ये फिलिस्तीन का शहर है। तो उसने कहा, क्या वहां के दरख्त फल दे रहे हैं? तो उसने कहा, उन्होंने कहा, हाँ वहां के दरख्त फल दे रहे हैं। उसने कहा, अनकरीब वहां के दरख्त फल देने बंद हो जाएंगे। फिर उसने कहा, मुझे बहरे तबरिया के बारे में बताओ। फिर तमीम अद्दारी ने कहा, बहरे तबरिया के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? ये फिलिस्तीन का एक चश्मा है। तो उसने कहा, ये फिलिस्तीन का एक दरिया है। तो उसने कहा, बहरे तबरिया में पानी मौजूद है? तो तमीम अद्दारी ने कहा, हाँ वहां पानी मौजूद है। फिर उसने कहा, अनकरीब वहां का पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो फिर तमीम अद्दारी ने कहा, ज़ुगर के चश्मे के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? वहां पर पानी मौजूद है, लोग उससे सैराब होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो फिर उसने कहा, मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ। तो फिर तमीम अद्दारी ने कहा, उम्मियों के नबी मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं। तो फिर उसने सवाल किया, क्या अरबों ने उनसे जंग की? तो उन्होंने कहा, यानी तमीम अद्दारी ने कहा, हाँ अरबों ने उनसे जंग की और वो शिकस्त पाए, अब लोग उनके हाथों पर बैअत कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा, ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो उसके हाथ पर बैअत कर लें। यही वजह बनी तमीम अद्दारी की ईमान लाने की। फिर उसने कहा, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं मसीही दज्जाल हूं। अनकरीब मुझे इजाजत मिलने वाली है, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, शहर शहर जाऊंगा, मगर दो शहर में ना जा सकूंगा, वो है मक्का और मदीना। वहां फरिश्ते नंगी तलवार लिए हुए खड़े होंगे जो मेरा कत्ल कर देंगे।
फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा लिया और ज़मीन पर दे मारा और कहा हादा तय्यब, मैं नहीं कहा करता था ये पाक शहर है, खबरदार हो जाओ, दज्जाल शाम और यमन के समुद्र के बीच में कहीं है। तो इस बात से ये पता चलता है कि वो सैटेलाइट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, ये उसके फितने ज़रूर हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है वो फिजिकल फॉर्म में आएगा, जैसा कि तमीम अद्दारी की हदीस से पता चलता है, जिसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। अब हम बात करते हैं दज्जाल कैसा होगा। तो नंबर 1, दज्जाल फिजिकल फॉर्म में होगा, यानी कि उसके पास जिस्म होगा। नंबर 2, दज्जाल की कोई औलाद नहीं होगी। नंबर 3, दज्जाल इब्ने आदम में से होगा, मतलब कि इंसान ही होगा। नंबर 4, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होंगे, यानी अल्लाह ताला ने उसे कुछ अलग इख्तियार ताकत दे रखी होंगी। जैसा कि हदीस में आता है कि वो इतनी तेज चलेगा जैसा कि बादलों को हवा लेकर के जाती है, मतलब इस कदर से तेज जाएगा, कभी आज यहाँ कल वहाँ, बहुत तेज रफ्तार उसकी होगी। नंबर 5, ईसा इब्न मरियम और मसीह दज्जाल की कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी, जैसा कि ईसा इब्न मरियम भी अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, तो मसीही दज्जाल भी मुर्दे को जिंदा कर देगा, यहाँ तक कि इंसान के मरे हुए माँ बाप को ला करके खड़ा कर देगा और वो उसकी गवाही देंगे कि ए बेटे, इसे तुम रब मान लो, ये तुम्हारा रब है। तो इस कदर का मतलब उसके पास वो होगा कि वो एक बार जिंदा कर सकता है। नंबर 6, वो कोकेजियन ट्राइब से होगा। ये एक यूरोपियन कबीला है जिसे अरब अहमर कहा करते थे, तो ये उस कबीले से होगा और बनी इसराइल से होगा, मतलब कि यहूदी होगा। नंबर 7, उसके घने और घुंघराले बाल होंगे, चौड़ी पेशानी होगी। नंबर 8, उसके दोनों आंखों के दरमियान काफारा लिखा होगा, जिसे ईमान वाला ही पढ़ सकता है। अच्छा, उसके बाद भी ईमान वाला पढ़ेगा मगर उसके बाद भी उसके फितने का शिकार हो जाएगा, तो काफारा काफिर लिखा होगा। नंबर 9, वो एक आंख का काना होगा। नंबर 10, उसके दोनों पैर एबनॉर्मल्स होंगे, मतलब कि दोनों पिंडलियां उसकी खराब होंगी। नंबर 11, एरोगेंट से भरा होगा, शदीद गुस्से के आलम में होगा, इस कदर गुस्से में चूर होगा। जब वो हदीस में आता है कि जब वो गुस्से में आएगा, शदीद गुस्से में आएगा, तो यही वजह बनेगी उसकी आजादी की। नंबर 12, उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, बहुत मजबूत फौज होगी, जिसका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा। और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मानना है वो दज्जाल को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और उनका मानना है कि वो दज्जाल से मिलते जुलते भी हैं, और वो जो है दज्जाल के लिए पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं, पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो जैसे इल्यूमिनाटी है, ज़ायनिस्ट है, फ्रीमेसन है। मैं इंशाल्लाह इस पर भी तफसील से वीडियो बना दूंगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे काम कर रही हैं। जब पूरी तरीके से हर चीज में दज्जालियत, यानी कि हर चीज में, रिश्ते से लेकर खाने से लेकर हर चीज में धोखा आ जाएगा, तब जो है दज्जाल जाहिर होगा। तो मेरे भाई दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल कब और कहां आएगा, वो क्या क्या फसाद मचाएगा, बचने का तरीका क्या है, खात्मा कैसे होगा। तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज।